Hello everyone. Today we are here with another very important topic, that is exponents, right? Exponents or indices. What's the other name for this? Indices. So in few books we have the chapter with the name exponents, and in few we have the chapter with the name indices. So here we are going to discuss some laws of exponents, as well as we are going to give you very important questions with the step by step solutions, right? So बिना किसी देरी के let's start with the laws, right? So these laws are very important, and on the basis of these laws you can solve the questions, right? So the first law is, where a raised to m into a raised to n is there, then it is equal to a raised to m plus n. हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, बट एक बेसिक आपको टर्म्स पता होने चाहिए. यहाँ पे हम a को क्या बोलते हैं? बेस, करेक्ट. और m और n क्या है? ये है हमारी पावर्स और एक्सपोनेंट्स और इंडाइसेस, राइट. इंडेक्स इसको बोलते हैं हम, या एक्सपोनेंट्स इसको बोलते हैं. सो दैट इज वाई ये टॉपिक जो है इसको एक्सपोनेंट्स या इंडाइसेस कहा जाता है, बिकॉज एवरी नंबर इज रेज टू समथिंग. सो जो नंबर है उसको हम क्या बोलते हैं? बेस. सो इफ बेस इज सेम एंड द पावर्स आर डिफरेंट, देन वी एड अप द पावर्स. एंड इफ बेस इज सेम एंड द पावर्स आर डिफरेंट, करेक्ट, एंड दे आर इन डिवीजन. फोर्थ लॉ हमारे पास क्या है? ए रेज टू एम अपॉन ए रेज टू एन, एंड वी सब्ट्रैक्ट द पावर्स. ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकेंड लॉ, ए रेज टू एम इंटू एन. सो ए रेज टू एम एन. एम और एन ध्यान रखिए कुछ भी हो सकता है. इट्स नॉट लाइक दैट इट्स गोइंग टू बी अ होल नंबर ऑलवेज और अ नेचुरल नंबर. इट कैन बी फ्रैक्शंस आल्सो, right? So now if bases are different in the third law and the power is same, then we can take the bases together and put the power at one go, correct? So that is what we have. These are very simple laws, and that is why the questions are also simple. This seems to be tricky sometimes, but otherwise they are very simple questions. So a raised to 0 is 1. This is important. Any number raised to 0 is 1. Suppose I take 2 raised to 0, that will be also 1. 3 raised to 0, that will be also 1. 7 raised to 0, that will be also 1. So that is important. So a raised to minus m is equal to 1 upon a raised to m. तो अगर आपको पावर को निगेटिव से पॉजिटिव बनाना है, you can take it from numerator to denominator, or the other way around is, if you have power negative in the denominator, you can take it to the numerator and make it positive. And this is important for higher standards, that is a raised to 1 by n is equal to nth root of a. This is very important. If I just take an example, a raised to 1 by 2 is square root of a, राइट. टू लिखना कंपलसरी नहीं होता है स्क्वायर रूट में. ये असम्पशन है कि कुछ नहीं लिखा है तो इट इज अ स्क्वायर रूट, राइट. दिस इज अ सिंबल फॉर स्क्वायर रूट. ए रेज टू 1/3 को आप क्या लिख सकते हैं? n की जगह व्हाट विल कम? क्यूब रूट. if a raised to 1/4 is there, what will come? Fourth root of a. So this is important for the fractions, especially for the higher standard, as I said. Otherwise, these are the basic laws of exponents which will help you to solve the toughest of the question. If you are clear with these laws, you can do any question of exponents. And it's not like that exponents is used only in 7th, 8th, 9th standard. It is used till 12th standard and ahead of that also, if you are doing UG and PGs also, because exponents is something which is a base for mathematics, right? Whenever you have something raised to m, raised to n, that is raised to any power, any exponent, you can everywhere use the law, correct? So students, let's start with the first question for today, and it seems to be in variables, so it might seem tough sometimes, but it's very easy. हम इसको start करेंगे एक बहुत simple से law से, right? So if we see the first term, it is x raised to a upon x raised to b, right? ये है हमारे पास term. So x raised to a, x raised to b में हम क्या कौन सा law लगा सकते हैं? देखिए base is same and the powers are different. तो हम कौन सा law लगा सकते हैं? a raised to m upon a raised to n, it is equal to a raised to m minus एन. ये लॉ हम इजीली लगा सकते हैं. तो अगर हम इस लॉ को लगाएंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स रेज टू ए माइनस बी. और हमारे पास जो पावर है बाहर का वो सेम रहेगा, उस पर कोई डिफरेंस नहीं आएगा. ठीक है. सेम वे इसको हम क्या लिख सकते हैं? बी माइनस सी, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर. इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक्स रेज टू सी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर. ये ऊपर ए स्क्वायर लिखा हुआ है, इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा. इट विल बी सी स्क्वायर, okay, because the two terms cannot be same, right? So we have written it. Now left hand side हम सिर्फ solve करेंगे and we will show it is equal to right hand side. Now if you just look at this term, कोई bracket open नहीं करेगा, right? So now just look at the terms raised to x. So what will it be? It is nothing but the identity a cube minus b cube. यहाँ हम लिख देते हैं identity आप लोगों को समझने के लिए. a cube minus b cube क्या होता है? a minus b ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. तो आपका टर्म देखिए कितना छोटा सा बन गया.
सेम वे ये किसकी आइडेंटिटी बन जाएगी, बी क्यूब माइनस सी क्यूब की, और ये किसकी आइडेंटिटी बन गई, सी क्यूब माइनस ए क्यूब की आइडेंटिटी। अब आप क्या करेंगे, अब आपके बेसिस सेम है फिर से एंड द टर्म्स आर इन मल्टीप्लीकेशन, तो आप कौन सा लॉ यूज करेंगे, ए रेज टू एम इंटू ए रेज टू एन इज इक्वल टू ए रेज टू एम प्लस एन। सो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स बेस है हमारा, और हम सारी पावर्स को ऐड कर देंगे, करेक्ट, सब पावर्स को हमने ऐड कर दिया क्योंकि हमारा बेस सेम था। नाउ ए क्यूब माइनस ए क्यूब कैंसिल, सी क्यूब माइनस सी क्यूब कैंसिल, बी क्यूब माइनस बी क्यूब, सो एक्स रेज टू जीरो। फिर हमने एक और लॉ पढ़ा था अभी, ए रेज टू जीरो इज वन, so the answer is 1 which is equal to right hand side, hence we have shown this that left hand side is equal to right hand side. So this is how do we go with these questions. If you know the laws, as I said, you will not be doing the wrong question and you will be finding all the questions very easy. जो स्टार्टिंग में आपको वेरिएबल्स की वजह से, थोड़े से लेंदी पावर्स की वजह से, बिग पावर्स की वजह से they seem to be tough. Okay, now let's take another question. Now show that, अब आपको शायद ये क्वेश्चन उसके कंपैरिजन में बहुत इजी लगेगा, और बिल्कुल सही बात है, इजी है भी, राइट, नंबर्स बहुत छोटे हैं, बट सेम कॉन्सेप्ट पे हमें ये क्वेश्चन करना है जैसे हमने पहले किया था। तो फिर से हम कौन सा लॉ यूज करेंगे, पहले ए रेज टू एम अपॉन बी रेज टू एन इज ए रेज टू एन, सॉरी, ए रेज टू एन माइनस वन, करेक्ट, ये लॉ हमने पहले भी यूज किया है। तो सेम थिंग इज हियर, बेस इज सेम एंड द पावर्स आर डिफरेंट इन द फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स रेज टू ए माइनस बी इंटू सी। सेम वे हम सेकेंड टर्म को क्या लिख सकते हैं, एक्स रेज टू बी माइनस सी इंटू ए। थर्ड टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स रेज टू सी माइनस ए इंटू बी। हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं, राइट हैंड साइड को हम कुछ भी टच नहीं करेंगे, रिमेंबर, ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट। नाउ अब हम कौन सा लॉ यूज करते हैं, ए रेज टू एम रेज टू एन, तो क्या होता है इसका आंसर, ए रेज टू एम एन, करेक्ट। अब हम सेम चीज यूज करेंगे यहाँ पे, अब हम पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर हमने पावर्स को मल्टीप्लाई किया सो वी विल गेट दिस, सी आई एम डूइंग स्टेप बाय स्टेप, राइट, ये सब एमसीक्यूज में भी आ सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो फिर वो वन लिख के नहीं देंगे, आपको ऑप्शन मार्क करना होगा वन। Now these questions are important for MCQs also because if you see the questions are very basic in the approach, correct. Now base is same and the powers are different, so what we will do, we will add up the powers if the base is same, correct. See, one line mein we are writing the power laws that you are using, that is also important if you have got these questions for the subjective. Okay, now we will add the powers without making any change, remember, आप सिर्फ सिंपली ऐड करेंगे पावर्स को, AB plus AB minus AB cuts out plus AC minus AC cuts out plus BC minus BC cut out. So x raised to 0 is 1. That's again equal to right hand side. So done. So hardly each step is based on each law. If you are clear with the laws, you will be easily able to do these questions. They are very easy. That is why they are important for competitive exams also. Because they seem to be harder, but no, it's not like that. They are pretty easy questions. Now let's move on to the next. Now we have to show that again left hand side is equal to right hand side. Now again we will make some approach to it, that negative powers हमें denominator में दिख रहे हैं ना, तो हमें पहले उसको हटाना पड़ेगा। देखिए x रेज टू a माइनस बी को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अगर a रेज टू m माइनस n है, जल्दी से लॉस का रिकैप करिए और बताइए इसको क्या लिख सकते हैं, a रेज टू m अपॉन a रेज टू n, करेक्ट। सो नाउ इफ वी यूज दिस, what will I get here, we can write it like this, correct. Same way the other one also I can write it like this, right. So this is my left hand side. Now if I take the LCM in the denominator, you will not touch the numerator right now because it's only one, we cannot make any change. So I will get x raised to b plus x raised to a. Here what will I get, x raised to a plus x raised to b upon x raised to a. Now this will go here in the numerator, this will also go in the numerator. So what will I get, x raised to a upon x raised to b plus x raised to a, x raised to b. Here x raised to a will go. Now if you see, the denominators are same, so their LCM will also be the same. So the LCM will be x raised to a plus x raised to b, right? So now here you get again x raised to b plus x raised to a. So this whole term cancels out and the answer is 1. So it's a simple answer. So if they ask you to find the value as an MCQ, then also you can do it. So the only one law we have used here,
to make the power from the negative to the positive, right? And then we can easily solve this question. Correct? It seems to be a lengthy question, but it's easy question because again it's in the same way as we did the previous one, right? Now let's make the powers positive again. Okay, now again we are using the same law, students. A raised to m minus n is a raised to m upon a raised to n. So 1 plus x raised to b upon x raised to a, x raised to c upon x raised to a. Okay, same way we will do it for all the terms. So 1 plus x raised to a upon x raised to b, x raised to c upon x raised to b, 1 plus x raised to b upon x raised to c, x raised to a upon x raised to c. So this is only the left hand side that we are solving, right? Now what will you do? Again the same thing you will do as you did in the previous question. You will take the LCM in the denominator only. So what will you get? This. If you take the LCM here again, x raised to b, so यहाँ पे क्या बन जाएगा? X raised to b, x raised to a, x raised to c. And if you take again the denominator में LCM, okay? So don't confuse yourself. Now these numbers will go in the numerator, correct? Because 1 upon anything is the reciprocal of the number. So reciprocal of the number will be reversal, okay? Now if I just take it up, x raised to a, x raised to b, x raised to c. ये टर्म देखिए, चेक करिए, सब में सेम है. So this I will write it commonly as an LCM. So here you will get x raised to a, here you will get x raised to b, here you will get x raised to c. So it's same. So the answer is 1. This is how do we show it. So one law we are using and just a simple concept of LCM, right? Nothing else we are doing. So very simple calculations. Questions tough hai, but calculations are very easy. Again in reverse, 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 everywhere we are getting. Now again it has to be solved by making the powers positive. Positive power कैसे बनाते हैं? क्या लॉ पढ़ा था हमने? A raised to minus m is equal to 1 upon A raised to m. Correct? अब हम सिर्फ एक लॉ यूज करेंगे अगेन. Now let's make it A plus B plus C. Left hand side we are solving. Okay? We can write it as 1 upon A into 1 upon B, 1 upon B into 1 upon C, 1 upon C into 1 upon A. करेक्ट. नाउ ए बी बी सी ए सी है हमारे पास. अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? वी विल टेक द एलसीएम ए बी सी. ए बी बी सी और सी ए का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम ऑफ ए बी बी सी एंड ए सी. व्हाट विल बी द एलसीएम? ए बी सी. राइट. सो व्हाट विल कम हियर? सी. यहाँ पे क्या आएगा? ए. यहाँ पे क्या आएगा? बी. because it's 1 upon AB, 1 upon BC, 1 upon AC. Now this ABC will again go up and A plus B plus C will remain as it is, and in the denominator also A plus B plus C will remain as it is. Both of them gets cut, common factor. So and then here we get the answer only as A, B, C. That's what I am saying, students. Question seems to be tough when you see at one glance, but please have confidence on you and start solving it. It becomes very easy. Right? Now let's do the next. This is very important. This question you will find in the textbook of CBSE, ICSE, everywhere. All the reference books. Right? Now again, let's do the left hand side first. So what will you get? 1 upon A inverse plus B inverse. ये 1 upon कैसे आया? Because here you have the law again. A raised to minus 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 upon A. Same thing is what we have used here. Instead of A, what do we have? A inverse plus B inverse whole raised to minus 1. Now A inverse को हम फिर से 1 upon A लिख सकते हैं. So that is what we are going to do. We are going to make the powers positive. Because आंसर में हमें positive powers चाहिए. Now AB का LCM क्या होता है? AB. So if you multiply, you get B plus A. Now this AB will go up. So AB upon A plus B, that's your final answer. That's equal to right hand side. See how simple way you can solve it. Correct? Now let's do the next. Now 3 raised to n into 9 raised to n plus 1 upon 3 raised to n minus 1 into 9 raised to n minus 1. Now this question can be solved in multiple ways, students. Seriously, I am saying. Multiple ways. अभी हम आपको जो वे बताएंगे दैट माइट बी इजियर फॉर समवन, दैट माइट नॉट बी अंडरस्टूड बाय समवन, ये भी हो सकता है, राइट? और अदरवाइज यू कैन डू इट
आई टेल यू, ओके, आई डू वन थिंग, आई विल सॉल्व इट विद टू मेथड्स. आपको जो इजी लगता है आप उससे सॉल्व करिए. ठीक है, चलिए देखते हैं. 3 raised to n, एक वे सॉल्व करते हैं, फिर दूसरा वे सॉल्व करेंगे. वी विल मेक द बेसिस सेम स्टूडेंट्स. 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर. हम पूरा बेस सेम बनाएंगे जिससे कि हम अपने लॉस को इजीली अप्लाई कर सकें. सो 3 raised to n. नाउ इफ यू मल्टीप्लाई, which law will you use for multiplication? A raised to mn is a raised to mn. So now 2n plus 2. Here what will it become? 2n minus 2. Now bases are same and the powers are different, and it is in multiplication. So which law you use? You use the law of product, right? Addition, sorry. It's m plus n, correct? Now let's add the powers. Here also let's add the powers. Now if we check, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है. Correct? If base is same and the powers are different, then what do? You take common base and subtract the powers. So let's use this law now. Okay, यहाँ पे हम ये law use कर रहे हैं. Let's see. So n plus 2n is 3n. Now all these numbers will go up, so they will become what? Negative. Correct? So minus n plus 1 minus 2n plus 2. So 2n n, this all cancels out, 3n with 3n. Then what do you get the answer? You get the answer as 2 plus 1 plus 2. That is 3 raised to 5. That is 3 raised to 3 is 27. 27 into 9. That is, you get the answer as 243. So that's your answer. So this is one way that we are getting the answer. Now what can be the other way? The other way could be solve the powers of 3 independently and the powers of 9 independently. So now if we solve the powers of 3 first. So now 3 raised to n upon n minus 1. So if the power, it will go up, it will become only 3. Right? Let's solve the powers of 9 independently. 9 plus 1 minus n plus 1. So what will it become? It will become 9 raised to 2. So 81 into 3. So that is 243. So that's your final answer. So there are two ways of solving it. You can use any of the two ways. The second way might seems to be quite easier for someone, and someone might find the first way. Right? First way is something which is an ideal way of solving. The second one is something which we can apply for this question especially. Okay? So it's like that. So both ways will get full marks. अगर आपने फर्स्ट वे से किया उसमें ज्यादा स्टेप्स हैं, सेकंड में कम स्टेप्स हैं, बट टीचर विल नॉट कट द मार्क्स स्टूडेंट्स. But you have to write the laws of exponents in brackets as we are writing here. Okay, whichever law you are using, you have to show. Now let's solve the next one. Now here the important part is, here all the terms are not in multiplication. There is subtraction sign in between. Correct? So here this is important. We cannot use the law directly. कुछ तो हमें करना पड़ेगा. So अभी हम क्या करेंगे? अभी हम सबके बेसिस पहले सेम बना लेते हैं. Okay? So 25 is, as we know, 25 is 5 square. Okay? This is what we all know. So let's make the base same. As we did in the previous question. So let's do it in the same way here. Let's add the powers. यहाँ पे already base same है. So 5 का मतलब पावर क्या है? 1. So let's do step by step. Let's not do the hurry. 5 square n plus 1. Okay, now let's do it. 5 का मतलब हमेशा हर जगह पावर 1. Okay, now let's add the powers. कौन सा लॉ यूज करेंगे हम पावर्स को ऐड करने के लिए? अगर बेस सेम होते हैं और पावर्स डिफरेंट होती है एंड प्रोडक्ट में होता है, then we add up the powers to the same base. So 1 plus 2n plus 2. यहाँ पे क्या बन जाएगा? 2 plus 2n. यहाँ पे क्या बन जाएगा? 2n plus 4. यहाँ पे क्या बन जाएगा? 5 raised to 2n plus 2. Now if you check here, we cannot subtract like this because की negative sign बीच में है कि आप subtract कर दीजिए. No, we cannot subtract here. Now what we can do? Now we will have to apply a small thing here. 5 raised to 2n, अगर आपको सब में कॉमन दिख रहा है ऊपर, चेक करिए. तो क्या बचेगा यहाँ पे? 5 raised to 3 रह जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा 5 स्क्वायर. ओके,
नीचे भी 5^2n हमें कॉमन दिख रहा है, दोनों टर्म्स में 5^4 रह जाएगा और 5 स्क्वायर रह जाएगा। ये कैसे रह जाएगा देखिए, अभी आप आई विल डू अ सिंपल रफ वर्क जस्ट टू एक्सप्लेन यू। ओके, 2n प्लस 3 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5^2n इंटू 5 3, करेक्ट, बाय द लॉ दैट वी हैव ऑलरेडी रिटन हियर। यू कैन सेपरेट द पावर्स। ओके, तो अगर उसमें से 5^2n कॉमन लिया तो क्या रह जाएगा स्टूडेंट्स, 5³ रिमेंबर दिस इज हाउ डू वी सेपरेट इट। नाउ दिस कैंसल्स आउट, तो आपका n चला गया, करेक्ट। नाउ 5³ क्या होता है, 125 माइनस 25, करेक्ट। नाउ 5^4 क्या होता है, 625 एंड 5 स्क्वायर क्या होता है फिर से 25। That's a simple question, correct? Now this will you get 100 and what will you get here? You will get 600. So what's the answer? 1 by 6. Just check. Right? So it's a simple question now. So powers को सॉल्व करने के लिए अगर आप बेसिस जितना सेम बनाएंगे और लॉज को यूज करेंगे उतना ही इजी होगा आपके लिए। यहाँ पे हमने एक ही लॉ यूज किया है पूरे क्वेश्चन में, बट द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज कि हमें अगर बीच में माइनस या प्लस का साइन होता है टर्म्स के बीच में, पावर्स में नहीं, टर्म्स के बीच में, देन वी हैव टू टेक द कॉमन पावर। ओके, हम जितना सिंप्लीफाई करेंगे उतना हमारे लिए इजी हो जाता है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ 5^n+3 माइनस 6 इंटू 5^n+1, 9 इंटू 5^n माइनस 2 स्क्वायर इंटू 5^n। अब इसको क्या कर सकते हैं, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा, टू टेक द पावर कॉमन। ओके, पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं हम, सो दैट यू अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे। देखिए हम कौन सा लॉ यूज कर रहे हैं, वही लॉ यूज कर रहे हैं जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में यूज किया था। कौन सा लॉ यूज किया था हमने पहले क्वेश्चन में, a⁻m+n को हम स्प्लिट कर रहे हैं, a⁻m इंटू a⁻n, करेक्ट। नाउ अब देखिए चारों टर्म्स में दो टर्म्स हमारे पास न्यूमरेटर में हैं और दो टर्म्स हमारे पास डिनोमिनेटर में हैं। क्या क्या कॉमन है, पहले वाले में 5^n, दूसरे में भी 5^n, 5^n, 5^n। लेट्स डू इट, लेट्स टेक द फैक्टराइजेशन का रूल। कॉमन फैक्टर बाहर लीजिए, तो क्या रह जाएगा यहाँ पे 5³, यहाँ क्या रह जाएगा 6×5 = 30, यहाँ पे भी कॉमन लिया तो क्या रह जाएगा 9, यहाँ से क्या कॉमन रह जाएगा 4। अरे वाह, ये क्वेश्चन तो आपके लिए बहुत सिंपल बन गया। अभी 5^n कट हो गया एंड हियर यू गेट 125 माइनस 30 और यहाँ पे 9 माइनस 5। 125 माइनस 30 is how much, 25/5 which gives you the answer 19. So it's a very very simple question. देखिए देख के अगर आप डर जाएंगे, मैथ्स में कोई भी दो क्वेश्चन सेम नहीं होते हैं स्टूडेंट्स, और एक ही कॉन्सेप्ट पे वी कैन मेक thousands, lakhs, crores of questions. कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए और करते जाइए, यू विल नेवर लैंड अप विद द रॉन्ग सॉल्यूशंस। तो कॉन्सेप्ट पे काम करिए मैथ्स में। मैथ्स में कोई भी चीज अपने आप से नहीं आता है, फॉर एवरी स्टेटमेंट वी हैव अ वैलिड रीजन। ओके, ना 6 into 8 raised to n+1, 16 into 2 raised to so, 10 into 2 raised to so, minus 7, 8 raised to m। मैम यहाँ तो बेस भी सेम नहीं है, पावर भी सेम नहीं है। बेस तो हम सेम बना सकते हैं ना स्टूडेंट्स, कैसे बना सकते हैं हम, 8 को आप 2 के बेस में क्या लिखेंगे, जल्दी से बताइए। 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 2³ वेरी गुड। 8 को वी कैन राइट 2³ करेक्ट। सो नाउ लेट्स मेक द बेस सेम। सो नाउ इफ वी मेक द बेस सेम, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2³ करेक्ट। चलिए ज्यादा सॉल्व नहीं करेंगे, करने को हम 16 को भी लिख सकते हैं, 6 को भी लिख सकते हैं, बट अभी थोड़ा सिंपल ही रखते हैं। हाँ, सो यहाँ पे भी हम 8 को लिख सकते हैं 2³। चलिए एक और स्टेप एक्स्ट्रा लिखेंगे, बस आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। नाउ लेट्स सेपरेट द पावर्स। नाउ अगर आप पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n+3 बन जाएगा, करेक्ट। नाउ ये क्या बन जाएगा, 2⁻² बन जाएगा। ओके, अलग हो जाएगा पावर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 इंटू 2⁻3n इंटू 2⁻1। यहाँ पे क्या बन जाएगा, 7 इंटू 2⁻3n। सो 2⁻3n अगर आपने कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू 8, 2³ क्या होता है 8, 6 इंटू 8 इज 48। नाउ 16 इंटू 2⁻² का क्या मतलब है, देखिए हम आपको साइड में लिख के दिखाते हैं। 2⁻² क्या होता है, 1/2 स्क्वायर, दैट इज 1/4। तो 16/4 कितना हो जाता है 4,
नाउ 2 रेस टू 3 एंड यहाँ भी कॉमन लिया, सो 10 into 2 क्या होता है 20, यहाँ पे कॉमन लिया तो 70। करेक्ट, ये दोनों कट कर दीजिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा 44/13 and that will be our final answer. So this is in a very simple way we are solving all these questions. हमने शायद क्वेश्चन को गलत कॉपी कर दिया। ओके ओके ओके, यहाँ पे प्लस साइन है तो और भी इजी हो गया हमारा आंसर। बाकी कोई चेंज नहीं है, सिर्फ हमारे पास यहाँ पे 4 है। करेक्ट, यहाँ पे प्लस था, हमने गलती से माइनस लिख दिया था, तो अभी हमारा आंसर और सिंपल आ गया 4। Correct, so that is what we have. So we have to be very careful with the concepts. Again I am saying the same thing, right? Concepts को अच्छे से करके चलिए, ठीक है। चलिए now next question करते हैं। Now if ABC is 1, show that this is equal to this. Now यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ये आपको बहुत सारी वर्कशीट्स में मिलेगा, बहुत सारी जगह पे मिलेगा, टेक्स्ट बुक में मिलेगा, ICSE की सब जगह मिलेगा, बट थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए ये जो गिवन कंडीशन है ना, इसको हम थोड़ा सा यूज करने वाले हैं। अभी आपके पास यहाँ पे टू वेरिएबल्स दिख रहे हैं हर टर्म में जो गिवन है। अभी अगर हम सारे वेरिएबल्स लेके चलेंगे हमारे लिए सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आंसर बहुत अच्छा सा है 1, राइट, और हमें वहां तक पहुंचना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/b, तो आप क्या बोलेंगे, यहाँ से क्या वैल्यू आएगा 1/b का। देखिए ABC इज 1, आप b को इधर ले जाइए तो क्या बचेगा AC, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/b। सो 1/b का क्या वैल्यू हो गया AC। ये तो आप सबको समझ में आ गया, 1/b का क्या वैल्यू है AC। ठीक है, कुछ नहीं समझा ना अभी, आप कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना, ओके। अभी आप मुझे बताइए B का क्या वैल्यू है। B का वैल्यू क्या है 1/AC। ठीक है, अभी B को वहीं पे छोड़ दीजिए और AC को ले जाइए। और अगर आपको वो भी समझ में नहीं आता तो ये आप एक काम करिए, आप ABC को 1 है, करेक्ट, अगर हम इसको दोनों साइड को AC से डिवाइड कर दें, क्यों कर रहे हैं, हमें B चाहिए सिर्फ। ओके, तो हम AC से दोनों से जो भी ऑपरेशन करेंगे वो दोनों साइड पे अप्लाई करेंगे। तो B का वैल्यू क्या बन गया 1/AC। ठीक है, ये दो वैल्यूज हमने निकाले। अभी ये क्यों निकाले हमने B और 1/B का वैल्यू, टू एलिमिनेट B फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। हम लेफ्ट हैंड साइड को सिर्फ A और C में लेके आएंगे। देखिए 1/B, करेक्ट, 1/B का क्या वैल्यू है, ये वैल्यू बन गया। अभी हम यहाँ पे करते हैं, सब एक साथ करिएगा। हाँ, B का क्या वैल्यू है 1/AC, C इनवर्स का मतलब 1/C, करेक्ट। अभी आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे, AC और C का एलसीएम AC, यहाँ पे क्या आएगा AC, यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आएगा A। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिंपली सॉल्व करते हैं, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे। 1/A, तो क्या एलसीएम आ जाएगा हमारा यहाँ पे A, तो यहाँ पे आएगा A, यहाँ पे आएगा AC, यहाँ पे आएगा 1। अभी आप ये फ्रैक्शंस तो हटाने पड़ेंगे ना, ऊपर लेके जाने पड़ेंगे। ठीक है, देखिए चलिए लेके जाते हैं तो AC विल गो अप। ठीक है, इसको हम ठीक से लिखेंगे क्योंकि 3 फ्रैक्शंस में नहीं लिख सकते हैं। A विल आल्सो गो अप, करेक्ट। अरे वाह, ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन लग रहा है ना। सारे टर्म सेम है हमारे डिनोमिनेटर में। हम लोग कितने खुश हो जाते हैं जब सारे टर्म सेम आते हैं, क्योंकि हमारे पास एलसीएम लेना बहुत इजी हो जाता है, इसीलिए हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं। सो ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा, वी विल राइट ऑल द टर्म्स, तो ये दोनों सेम है, सो वी गेट द आंसर 1। करेक्ट, यही हमें शो करना था। सो क्वेश्चन टफ लग रहा था लेकिन हमने उसको बहुत सिंपल वे में किया। करेक्ट, नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें सॉल्व करना है, सॉल्व मतलब अब हमें x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, सो सॉल्व फॉर x मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x सो दैट दिस इक्वेशन कैन बी ट्रू। करेक्ट, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 7 raised to 2x + 3 इज इक्वल टू 1। भी क्या करें, देखिए एक छोटा सा हम आपको लॉ बता देते हैं। लॉ नहीं है, प्रॉपर्टी है वो। लॉ होता तो आपको स्टार्टिंग में बता देते। हम 1 को लिख सकते हैं 7 raised to 0, ये तो आपने पढ़ा है। अरे वाह, ये तो पढ़ा हुआ है ना, कोई भी बेस raised to 0 is 1। करेक्ट, नाउ देयर इज अ वन स्मॉल प्रॉपर्टी। जब हमारे पास दो साइड्स होती हैं, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन वी आर गिवन, सो इफ bases are same, correct, then powers are to be equal 100%। ये आप प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से याद रखिए। क्या मतलब है कि 2 raised to 4 हमेशा 2 raised to 4 के इक्वल होगा ना।
ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि 2 रेस टू 4 2 रेस टू 3 के इक्वल हो, 2 रेस टू 5 के इक्वल हो। अब 7 रेस टू 2x प्लस 3 है, तो 7 रेस टू 2x प्लस 3 सेम ही नंबर के इक्वल होगा, करेक्ट। तो जीरो के इक्वल हमें इसको करना है। अगर हम ये लॉ यहाँ पे यूज करें, या आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इफ बेसेस आर सेम देन पावर्स आर इक्वल। इफ बेसेस आर सेम then powers are equal, correct। So 2x plus 3 is equal to 0, so x का क्या वैल्यू आ जाएगा, -3/2। कितना इजीली हमने सॉल्व कर दिया। सिर्फ एक चीज ध्यान में रखनी है कि अगर बेस सेम होते हैं तो पावर्स क्या होंगी, दोनों साइड पे हैज टू बी इक्वल। क्लियर। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट। अब आप ये क्वेश्चन तो आराम से कर सकते हैं, लेकिन इसमें तो बेस ही सेम नहीं है मैम। चलिए बेस सेम बना लेते हैं। 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, वो तो सबको पता है ना। अभी हम ये लॉ यूज करेंगे, a रेस टू m इंटू एन क्या होता है, a रेस टू m। सो 2 रेस टू x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 रेस टू 2x माइनस 6। सो bases are same, again you can write it here, bases are same, so powers will be equal, करेक्ट। सो x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 6। अब आपके लिए लीनियर इक्वेशन बन गया, ये तो सबको आता है सॉल्व करना। 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 2x माइनस x, और 7 इज इक्वल टू x। क्लियर, बहुत सिंपल वे में। नाउ चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। अभी ये तो आप सब सॉल्व कर सकते हैं ना। क्या करना है इसमें, पहले हमें बेस सेम बनाने हैं, तो हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 क्यूब। वेरी गुड। सो 2 रेस टू 5x प्लस 3, 8 को हम लिख सकते हैं 2 क्यूब। सो 2 रेस टू 5x प्लस 3 किसके इक्वल हो जाएगा, 2 रेस टू 3x प्लस 9। अभी अगेन पावर्स विल बी इक्वल बिकॉज द बेसेस आर सेम। अगेन यहाँ लिख देते हैं बेसेस आर सेम, so powers will be equal। तो अभी हमारे पास क्या बन गया, 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 9 माइनस 3, करेक्ट। सो वी गेट 2x इज इक्वल टू 6, so x इज इक्वल टू 3, करेक्ट। सिंपल वे में कितने इजी इजी अभी आपको ये क्वेश्चंस लग रहे हैं, करेक्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। ये क्या है, 4 रेस टू 2x इज इक्वल टू 1/32। 32 किसके पावर्स में आएगा, चेक करिए जरा, फटाफट सोचिए। 2 के पावर में आता है ना। सो 4 को भी हम 2 का पावर बना लेते हैं, और 32 को भी बना देते हैं 2 का पावर। अभी तो ये न्यूमरेटर में है, वो डिनोमिनेटर में है, तो क्या कर सकते हैं हम। अभी देखिए, हमने इसको क्या लिखा, 4 को 2 स्क्वायर इंटू 2x कर दिया, करेक्ट। और हमने 32 को क्या कर दिया, 1/2 कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये देखना है कि ये पावर तो हमारे पास डिनोमिनेटर में है 2/5, और 2/2 इंटू 2x हमारे पास न्यूमरेटर में है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2/4x, और इसको क्या लिख सकते हैं, 2/-5। -5 कैसे लिखा हमने, 1/a⁻m क्या होता है, a⁻−m, करेक्ट। ये हमने लिखा था लॉ, करेक्ट। सो पावर्स को पॉजिटिव नेगेटिव कैसे बनाया जाता है, सो अगेन बेसेस आर सेम, सो पावर्स इक्वल, राइट। सो 4x इज इक्वल टू -5, सो x इज -5/4, करेक्ट। तो हमारा ये सिंपल क्वेश्चन हो गया। चलिए अभी नेक्स्ट कर लेते हैं। 4 रेस टू x माइनस 1 इंटू 0.5 रेस टू 3 माइनस 2x इज इक्वल टू 1/8 रेस टू x। अब ये क्या है, ये तो सब बहुत गड़बड़ है, एक 4 है, एक 0.5 है, एक 1/8 है। कुछ तो रिलेशन होगा सब में, जरा ध्यान से सोचिए। यस, सब में रिलेशन है। क्या रिलेशन है, अगेन बेस 2 का रिलेशन है। देखिए हम क्या लिख सकते हैं, 4 रेस टू x माइनस 1। 4 को अभी हम अलग अलग लिख लेते हैं सारे टर्म्स को, सो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, करेक्ट। अच्छा, 0.5 रेस टू 3 माइनस 2x, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.5 को हाफ। वेरी गुड। 3 माइनस 2x, और हाफ का मतलब 2 का पावर क्या हो जाएगा, -1। बन गया ना 2 का बेस ये भी। 1/8 को हम क्या लिख सकते हैं, अब तो आप बता सकते हैं, 1/2 क्यूब, और उसका पावर क्या है, अभी हम पावर में कर देते हैं इसको रेड्यूस, x से। तो ये क्या बन जाएगा, 2⁻³ इंटू एक्स। अब हमें बस सबको सब्स्टिट्यूट करना है और वैल्यूज को कंपेयर करना है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 2x माइनस 2
ये क्या बन जाएगा 2⁻³ प्लस 2x, करेक्ट। और ये क्या बन जाएगा 2⁻³ सिंपल से वे में हमने लिख दिया, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब हमारे पास बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है और मल्टीप्लिकेशन में है, तो कौन सा लॉ यूज करते हैं, एडिशन का लॉ, करेक्ट। सो 2⁻2x-2 - 3 प्लस 2x, सो 2⁻³ करेक्ट। अभी आप सिंपली सॉल्व कर लीजिए, 2x + 2x 4x - 5 इज इक्वल टू 2⁻³ अब हम क्या यूज करेंगे, बेसेस आर सेम, इक्वेट द पावर्स, करेक्ट। चलिए इक्वेट कर देते हैं, 4x - 5 विल बी इक्वल टू -3x, so 7x will be equal to 5, so x will be equal to what, 5/7। सिंपल सा आंसर आ गया आपके पास, करेक्ट। तो देखिए हम बहुत सिंपल वे में क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। अभी तो सबको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और सबको कॉन्फिडेंस भी आ गया होगा, जो आप लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं अब। नाउ 2⁻³ - 7 इज इक्वल टू 2⁻56, सॉरी 256। सो नाउ टेल मी 256 को आप 2 का बेस बना सकते हैं, यस बहुत आराम से बना सकते हैं। क्या बनाएंगे आप उसको, 2⁸ वेरी गुड। सो नाउ 3x - 7 विल बी इक्वल टू व्हाट, 8, सो बेसेस आर सेम, पावर्स आर इक्वल। तो ये सबको याद भी हो गया होगा ना, 8 + 7 15, सो x इज इक्वल टू 5, हो गया, ठीक है। देखिए कितने सिंपल वे में आप सॉल्व कर रहे हैं। नाउ अभी ये देखिए, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है ना। नाउ चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं, कुछ डिफरेंट वे में ही करेंगे सॉल्व। तो देखिए इसमें हमें ये इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब इक्वेशन का मतलब क्या है मैम, ये पहले जैसा नहीं है, नहीं, क्योंकि इसमें बीच में प्लस और माइनस साइन, ठीक है। तो अभी हम इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा बेसिस को ठीक से करके लिखते हैं। 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं हम, 2⁻2x को, इसको हम लिख सकते हैं 2⁻3 और इसको हम लिख सकते हैं 16, करेक्ट। नाउ इफ आई हैव टू पुट 2⁻x एज t, आप सबने पॉलिनोमियल्स भी किया है, फैक्टराइजेशन भी किया है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी किया है, थोड़ा सा हम इसको उस वे में लेके आएंगे। सो 2⁻x इज t, सो ये क्या बन जाएगा, t² - 8t + 16। देखिए 2⁻x को हमने t ले लिया, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगता हो, ठीक है। तो अब ये बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब इसको आप कैसे फैक्टराइज करेंगे, कौन से दो नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट 16 है और उनको ऐड करके 8 आए, यस वेरी गुड, 4 and 4। तो क्या बन गया ये बन गया हमारे पास t कॉमन लिया, यहाँ से 4 कॉमन लिया, t-4 का होल स्क्वायर, और t-4 टू टाइम्स। अब आप 2x को 4 वापस सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और 2x - 4, अभी हमारे पास क्या आंसर बन जाएगा, देखिए 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 के बेस में, 2²। तो x की वैल्यू क्या हो गई, अगेन सेम, बेसेस आर सेम एंड द पावर्स आर इक्वल 2। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, करेक्ट। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि यहाँ पे इक्वेशन है, तो हम ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत क्वेश्चन आएंगे ऐसे, राइट। आप जैसे जैसे हायर स्टैंडर्ड्स में जाते हैं, हाउ डू यू यूज एक्सपोनेंट्स, सब चीज एक साथ आ जाते थे, हाउ यू सी द एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, करेक्ट। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। क्वेश्चन को हमने बहुत सिंपल वे में, फैक्टराइजेशन भी आपके सिलेबस में है, ऐसा नहीं है कि कुछ नया टॉपिक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी आप सबको आता है, क्या प्रॉब्लम है, सिंपल सब्स्टिट्यूशन का करना है, ओके। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट। चलिए अब इसको भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं, बहुत इजीली ट्राई कर सकते हैं अब तो, है ना। इसको थोड़ा सेपरेट करके लिख देते हैं, 3⁻x इंटू 2, यहाँ क्या बन जाएगा, 3⁻4 + 1 - 2, 3⁻x 3⁻2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है इसमें, 3⁻x को हम यहाँ भी t ले लेते हैं, तो क्या बन गया ये t²। 3⁻4 कितना होता है, जल्दी से बोलिए, 81 प्लस 1 माइनस 2 इंटू 9 कितना होता है, 18, और ये भी बन गया t। अब अगर हम इसको थोड़ा ठीक से लिख दें तो ये बन जाता है ऐसे, करेक्ट।
अभी ये क्या बन गया, अभी इसको भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी कर सकते हैं और आइडेंटिटी से भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। देखिए ये क्या बन जाएगा, 9t का स्क्वायर, सो 9t इंटू वन प्लस वन स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी है बताइए? यस, 9t माइनस वन होल स्क्वायर, करेक्ट। सो 9t इज इक्वल टू वन हो गया इसका मतलब, करेक्ट। अभी आपको एक स्टेप और लिख देते हैं, चलिए। सो t का वैल्यू कितना हो गया, 1/9, और t क्या है हमारे पास, 3 raised to x, और 9 को आप क्या लिख सकते हैं, 1/9 को 3 raised to -2। सो x का वैल्यू क्या बन गया, 1 - 2। सो सेम, एग्जैक्टली सेम वे में हमने सॉल्व किया जैसे हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया। ये क्वेश्चंस में आप लोगों को शायद थोड़ा सा स्टार्टिंग में लगे कि नहीं मैम हमें कैसे समझेगा। देखिए कुछ भी समझने के लिए कॉन्सेप्ट को समझना है हमको, और अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आया आप इजीली ये कर सकते हैं। ठीक है, अभी सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया एक्सपोनेंट्स में, अब आप लोग डरेंगे नहीं कोई भी क्वेश्चन करते हुए। और अगर आपको सब अच्छे से समझ में आया है सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू एवरीवन।